afternoon students, and now it's our 21st lecture which is on Laplace transform. We have seen in previous lectures some properties of Laplace transform, and we continue with the next property, that is property number 6, which is that if we allow f of t equals to f of s bar, then allow f of at, मतलब यहाँ पे t के साथ अगर a आ गया, f of at is a that it is a constant or it is a parameter f of at that is equals to, then Laplace transform of that type of function is equals to 1 by a into f of s by a bar. मतलब यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि पहले f of t का Laplace transform जो आपके पास रहेगा f of s bar के फॉर्म में, अगर t के साथ a मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे 1 by a आएगा और s रिप्लेस हो जाएगा s by a से. एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी रहती है प्रॉब्लम विच बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी ऐसे इतने प्रॉब्लम नहीं आते, एक हाथ रहता है, तो वही एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ. सो सी दैट प्रॉब्लम, फाइंड द Laplace transform of, we have to find that Laplace transform of that function e raised to minus t f of 3t, और हमें यहाँ पे दिया है कि Laplace transform f of t equals to 1 by s e raised to minus 1 by s. So we have to find the Laplace transform of that function. इसका हमें Laplace transform यहाँ पे निकालना है. We have given the Laplace transform of that function here, and now we continue with that. यहाँ पे आंसर पे we have written that L of f of t equals to 1 by s e raised to minus 1 by s here, and which we consider as the f of s. अब उसके बाद यहाँ पे दो फंक्शन से we have to find the Laplace transform product of that two function. So पहले इसका देखते हैं हम, what is the Laplace transform f of 3t. अब f of 3t का निकालने के लिए obviously we have to use that result. यहाँ पे a की जगह 3 है और ऑलरेडी हमारे पास f of t का Laplace transform है in the form of f of s, और वो अभी हमने यहाँ पे देखा that L of f of t equals to that is given to s. अब यहाँ पे अगर 3 आ गया t के साथ तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे 1 by a मतलब 1 by 3, और यहाँ पे जो आपका s है, जो Laplace transform की जो टर्म है जहाँ पे s है वहां पे क्या हो जाएगा, चेंज बाय दैट प्रॉपर्टी s इज रिप्लेस्ड बाय s by 3. सो यहाँ पे f of 3t का Laplace transform आ गया 1 by 3, 1 upon s is replaced by s by 3. यहाँ पे e raised to minus 1 by s है, f of t का Laplace transform, तो यहाँ पे भी s रिप्लेस हो जाएगा s by 3 से. सो इट बिकम e raised to minus 1 upon s by 3. अब थोड़ा उसको सिंप्लीफिकेशन कर देंगे हम नेक्स्ट स्टेप में. तो यहाँ पे L of f of 3t इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है. अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाने के बाद बोथ 3 गेट कैंसल, यहाँ पे रहेगा 1 by yes as it is, और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है 3 दैट ट्रांसफर टू न्यूमरेटर, सो इट बिकम अ e raised to minus 3 by s into 1 by yes. So that is the Laplace transform of f of 3t, that is equals to e raised to minus 3 by s 1 by yes. And now we comes on the Laplace transform of product of that two terms. अब यहाँ पे हमने ये टर्म ली है. अब अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए तो ये फंक्शन कौन से फॉर्म में है. If you observe that we have already seen the properties of that type, that is Laplace transform, ये इस प्रॉपर्टी के फॉर्म में Laplace transform e raised to minus at into f of t. इसका Laplace transform आप सबको पता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारी. यहाँ पे Laplace transform क्या रहता है, that is it is in the form of f of s plus a bar. मतलब f of t का जो Laplace transform रहता है f of s bar, वहां पे s is replaced by s plus a. अब ऑलरेडी हमारे पास इसका f of 3t का Laplace transform है जो अभी अभी हमने यहाँ पे लिखा है. तो यहाँ पे सिर्फ चेंजेस क्या होंगे, जो हमारा s है वो s रिप्लेस हो जाएगा s प्लस a से, और यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे a की वैल्यू तो a की वैल्यू हमारी 1 है. तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, इस Laplace transform में e raised to minus 3 एज इट इज रहेगा, पर जो आपका s है s इज रिप्लेस बाय s plus 1 बिकॉज द वैल्यू ऑफ a इज हियर 1. सो e raised to minus 3 upon s plus 1, यहाँ पे भी s रिप्लेस हो जाएगा 1 upon s plus 1. So in this way we get the Laplace transform of that function. So hope you understand that, which is based on that property which is called as the change of scale of property. So इसके ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, एक प्रॉब्लम था जो मुझे मिला, so I have taken that, and now we continue on that next. So that is our property number 7. What is the property?
If L of f of t equals to f of s bar, then the Laplace transform of ddt of f of t equals to s into f of s bar minus f of 0. ये f of 0 is nothing but the value of that f of t at t is equals to 0, that represent f of 0. अगर सेकंड डेरिवेटिव है यहाँ पे, then Laplace transform d2 by dt2 of f of t that is equals to s square f of s bar minus s f of 0 minus f dash of 0. अब f dash of 0 is nothing but the value of f dash of t at t is equals to 0. Then अब यहाँ पे डेरिवेटिव के फॉर्म में अगर हमें एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो देयर आर टू रिजल्ट. अब इसके जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो प्रॉब्लम हमें, ये जो रिजल्ट है हमें यूज करना पड़ता है जनरली व्हेन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म. दैट मींस इन द एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये दो रिजल्ट यूज होते हैं जनरली. इस पे बेस प्रॉब्लम एक ही है जो अब तक आया है पेपर में, सो आई हैव टेकन दैट प्रॉब्लम हियर. So what is that problem? Find the Laplace transform of ddt of sin t by t. So हमें निकालना है Laplace transform of derivative of sin t by t. So सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन का निकालेंगे और उसके बाद डेरिवेटिव का निकालेंगे by using that above property. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि we consider that sin t by t as a capital f of t. इसको हम होल फंक्शन को कैपिटल f of t कंसीडर करते हैं. अब हमें पता है कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, वन बाय वन. जैसे पहले sin t का निकालेंगे एंड देन वी फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t by t. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टी देखी है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ t. सो वही रिजल्ट यहाँ पे यूज करना है. सो सबसे पहले हम निकालेंगे sin t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t, अब आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म sin a t क्या रहता है, दैट इज a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर हमने sin t को sin a t से कंपेयर किया तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ जाएंगी. सो sin t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा हमारा 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1. सो दैट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t. अब हमें निकालना है sin t by t का. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t by t दैट इज इक्वल्स टू, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में ये प्रॉपर्टी दिखी है, सो दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम s टू इंफिनिटी f of s bar ds. ऐसे फॉर्म में रहता है अगर t से डिवीजन होंगे f of t फंक्शन को. अब यहाँ पे डिवीजन में t है, ये सपोज हमारा f of t है, तो इसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं f of s bar एंड वी टेक द इंटीग्रेशन ऑफ दैट f of s bar इन द लिमिट्स, इन बिटवीन द लिमिट्स फ्रॉम s टू इंफिनिटी. सो यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t इज 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, दैट इज योर f of s bar. सो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे. पुट करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1. अब 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ s. लिमिट्स क्या है हमारे पास, s टू इंफिनिटी. लिमिट अप्लाई कर देंगे. अपर लिमिट अगर पुट किया tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू रहती है पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो एज इट इज वैल्यू रहेंगे, दैट इज tan इनवर्स ऑफ s. और हमें इसका रिजल्ट पता है कि पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s इज नथिंग बट cot inverse of s. So we have written that Laplace transform of sin t by t is equals to cot inverse of s. But यहाँ पे हमें रुकना नहीं है because we want the Laplace transform of derivative of that sin t by t. अब derivative of sin t by t का Laplace transform निकालने के लिए जैसे अपनी above property है, so we have to use that result. और derivative of f of t क्या रहता है, derivative of f of t is a s into f of s bar minus f of 0. So ये result हमें यहाँ पे use करना पड़ेगा. That is Laplace transform of ddt of sin t by t equals to s into f of s bar minus f of 0. अब ये f of s bar क्या रहता है, f of s bar जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं उस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म. जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव किसका है, sin t by t का. तो sin t by t का ऑलरेडी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है, दैट इज नथिंग बट cot इनवर्स ऑफ s. तो ये हो गया हमारा f of s bar. सो s एज इट इज रहेगा यहाँ पे और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t by t का cot इनवर्स ऑफ s यहाँ पे पुट किया. अब रहा सवाल f of 0 का. तो f of 0 जैसे मैंने आपको बताया कि f of 0 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ f of t at t इक्वल्स टू 0. तो अब इसमें हमारा f of t क्या हो गया इस फंक्शन में, दैट इज sin t by t. अब sin t by t at t is equals to 0. sin t by t हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि as limit tends to 0 sin t by t that is equals to 1. So when you take the limit that t equals to 0,
देन द रिजल्ट ऑफ दैट sin t by t is equals to 1, उसकी वैल्यू 1 रहती है यहाँ पे अगर हमने लिमिट लिया. सो वी पुट f of 0 is equals to 1 here. सो यस cot इनवर्स ऑफ s -1. सो ये आ गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dt ऑफ sin t by t. लगे तो एक स्टेप यहाँ पे हम और कर देंगे, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dt ऑफ sin t by t that is equals to this. So ये हो गया हमारा रिजल्ट. और इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी है कि f of 0 की वैल्यू है 1 as limit t tends to 0 sin t by t equals to 1. So we put that f of 0 as a. So in this way we get the problem which is based on that property. So that two results are very important of property number 7. These are very useful in application of Laplace transform. So remember that two results. So hope you understand that both the properties. उसके बाद हम other problems देखेंगे. Student, I have seen just all the problems which is based on the properties, and now we comes on the problems which is based on the definition of Laplace transform. जो सबसे पहले basic definition हमने देखी थी कि Laplace transform of f of t in the form of integration that is equals to integral is from 0 to infinity e raised to minus st f of dt. So f of t dt उस फॉर्म में जो देखी थी उस पे बेस प्रॉब्लम है कुछ. So we will solve that. So first problem, find the Laplace transform f of t where we have given f of t is equals to sin t for the interval 0 is less than t is less than pi and equals to 0 for t is greater than pi. मतलब यहाँ पे आपका जो f of t है वो दो इंटरवल में आपको दिया है. देयर इज अ वैल्यू ऑफ दैट एफ ऑफ टी इन टू सब इंटरवल्स. तो पहले इंटरवल के लिए 0 to पाई के लिए उसकी वैल्यू एफ ऑफ टी की साइन टी, और दूसरा इंटरवल जो एफ ऑफ टी इज ग्रेटर देन पाई उसके लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 है. और ऐसे फंक्शन के लिए हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है. सो हाउ टू गेट दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म. सो फर्स्ट हमने तो ये फंक्शन एज इट इज यहाँ पे लिख लिया. अब डेफिनेशन का यूज करके हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. मतलब हमें इंटीग्रेशन जो है बाय द डेफिनेशन हम कैसे लिखते हैं, एल ऑफ एफ ऑफ टी that is equals to integral from 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. So यही हो जाता है हमारा f of s बार, क्योंकि जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आता है वो s के फॉर्म में आता है. सो हम डिफाइन करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ s दैट इज f of s बार. सो अब ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे. सो इसके लिए हमें f of t की वैल्यू फ्रॉम दैट अबव टर्म वी हैव टू पुट हियर. तो अब देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो इंटरवल है यहाँ पे इस प्रॉब्लम का दो इंटरवल में डिवाइड है, 0 to पाई और पाई टू इन्फिनिटी. बिकॉज यहाँ पे सेकंड इंटरवल के लिए t की वैल्यू है t इज ग्रेटर देन पाई. दैट मीन्स t इज लाइज इन बिटवीन पाई टू इट गोज टू इन्फिनिटी. ये पाई भी रहता है, पाई के आगे की भी वैल्यू जो रहेंगी वो रहेंगी इट इज ग्रेटर देन पाई. सो दैट इज फ्रॉम पाई टू इन्फिनिटी. सो फॉर द फर्स्ट इंटरवल 0 to पाई वी डिवाइड दैट इंटीग्रल एज अ 0 to पाई दैट e raised to minus st एज इट इज रहेगा. पर इन बिटवीन 0 to पाई यहाँ पे f of t की वैल्यू क्या है हमारी sin t. तो हमने यहाँ पे पुट की sin t dt प्लस अब आगे का जो इंटरवल है for t is greater than पाई दैट मीन्स फ्रॉम पाई टू इंफिनिटी. तो पाई टू इंफिनिटी के लिए ये तो एज इट इज रहेंगे e raised to minus st, पर यहाँ पे f of t की वैल्यू क्या रहेंगी 0 रहेंगी बिकॉज यहाँ पे 0 दिया है एंड इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू t. अब जब यहाँ पे इंटीग्रेंट ही 0 है मतलब ये सब 0 हो जाएगा. अब 0 हो जाएगा मतलब इंटीग्रेंट की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब ये टोटल 0 हो गया. सो सिंपली हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट ओनली दैट फर्स्ट इंटीग्रल. सो अब इस पे आते हैं हम. सो दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 to पाई e raised to minus st sin t dt. अब थोड़ा अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है इंटीग्रेशन के जो आप लोगों ने देखे भी होंगे m1 m2 में. सो वही स्टैंडर्ड रिजल्ट है यहाँ पे हमें यूज करना है. तो रिजल्ट यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपका फंक्शन अगर आपने ऑब्जर्व किया तो एक एक्सपोनेंशियल है और एक साइन के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री. तो हमारे पास रिजल्ट है कि e raised to ax into sin bx dx. ऐसे फॉर्म में अगर आपका फंक्शन रहता है e raised to ax into sin bx dx तो इसके इंटीग्रेशन का रिजल्ट रहता है e raised to ax upon a square plus b square. a is from that e raised to x and b is from sin bx. So upon a square plus b square in bracket a sin bx minus b cos bx. बस इस रिजल्ट की कंपैरिजन इसके साथ करो और इसका ये रिजल्ट हमें निकालना है. अब अगर इस फंक्शन की इसके साथ कंपैरिजन की तो यहाँ पे a की जगह
माइनस यस है और बी की जगह यहाँ पे 1 है। तो अब यही दो बातें ध्यान में रखते हुए ये रिजल्ट क्या आएगा हमारा, सो ये आ जाएगा ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन यस माइनस यस होल स्क्वायर प्लस बी, तो बी की वैल्यू है सो प्लस 1 स्क्वायर इन ब्रैकेट इनटू ए साइन बी एक्स दैट इज माइनस एस साइन टी माइनस बी, बी की वैल्यू है माइनस बी कॉस बी एक्स, सो दैट इज माइनस 1 इंटू कॉस टी। और हमारे लिमिट्स है इसके फ्रॉम 0 टू पाई, सो हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी 0 टू पाई। अब ये ऐसी की ऐसी टर्म वहां पे लिख देते हैं हम, सो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, यहाँ पे वो टर्म लिखी हमने ई रेस टू माइनस एस टी। अब माइनस एस स्क्वायर है दैट मीन एस स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर दैट इज 1, सो एस स्क्वायर प्लस 1 इन ब्रैकेट यहाँ पे माइनस एस साइन टी एज इट इज, यहाँ पे माइनस कॉस टी, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई। अब यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे, जो अपर लिमिट है पाई, सो सबसे पहले अगर यहाँ पे पाई पुट किया टी की जगह पाई आ जाएगा, सो ई रेस टू माइनस एस पाई, डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस एस स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एस एज इट इज, यहाँ पे साइन टी है तो साइन पाई माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई। अब ये हो गया हमारा अपर लिमिट, ये तो हमारा अपर लिमिट हो गया। अब आ जाते हैं माइनस ऑफ लोअर लिमिट की तरफ। अब लोअर लिमिट अगर आप देखेंगे तो लोअर लिमिट हमारा 0 है। अब जब आप यहाँ पर टी की जगह 0 पुट करेंगे तो ई रेस टू 0 हो जाएगा, ई रेस टू 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज एस स्क्वायर प्लस 1। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 0 रहता है, सो 0 इंटू समथिंग बिकम अ 0 माइनस कॉस 0 वी पुट एज इट इज, बिकॉज हमें पता है कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। अब आगे आते हैं, आगे के स्टेप में ये टर्म एज इट इज रहेगी। अगेन साइन पाई हमें पता है कि साइन पाई भी 0 रहता है, सो साइन पाई इंटू दैट टर्म, सो दैट टर्म बिकम अ 0 एज साइन पाई इज अ 0, सो 0। उसके बाद कॉस पाई की वैल्यू रहती है माइनस 1, कॉस पाई इज अ माइनस 1, सो हमने यहाँ पे ये माइनस साइन और ये कॉस पाई की वैल्यू माइनस 1 लिखी, माइनस ऑफ दैट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। और हमें पता है कि कॉस 0 1 रहता है बट देयर इज अ माइनस साइन, सो दैट इज अ माइनस 1। सो ये आ गया आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स, सो वी गेट दैट वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है दैट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, सो हम वो टर्म कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे दैट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या रहेगा ई रेस टू माइनस एस पाई और यहाँ पे रहेगा सिंपली प्लस 1। So in this way we get the Laplace transform of that f of t when our f of t is given in the form of interval by using the definition of Laplace transform. So hope you understand that problem. अच्छे से इसको एक बार और रिवाइज करो। अब ऐसे ही सेकंड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं हम, इसी फॉर्म में है हमारा सेकंड प्रॉब्लम। अगेन वी हैव टू फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी अगेन दो इंटरवल में डिवाइड हुआ है, सो फर्स्ट इंटरवल में एफ ऑफ टी की वैल्यू है टी प्लस 1 और इंटरवल है इन बिटवीन 0 टू 2, दैट मीन्स टी इज लाइज इन बिटवीन 0 टू 2। उसके बाद सेकंड इंटरवल के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू 3 है और यहाँ पे टी के लिए कंडीशन है कि दैट इज टी इज ग्रेटर देन 2, दैट मीन टी इज वैलिड फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी। अब बेसिक डेफिनेशन का यूज करना है, सो फर्स्ट तो हमने ये फंक्शन एज इट इज लिख लिया, उसके बाद डेफिनेशन भी लिख लिया यहाँ पे कि क्या रहता है, यस लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी दैट इज इक्वल्स टू, ये भूलना नहीं है क्योंकि इट इज वेरी यूजफुल, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब आगे ये स्टेप यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट दैट प्रॉब्लम वी कंटिन्यू ऑन दैट साइड। सो एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन है हमारा 0 टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो दो इंटरवल में डिवाइड हुआ है। फॉर t प्लस 1 इंटरवल इज फ्रॉम 0 इज लेस देन t इज लेस देन 2 एंड फॉर 3 t इज ग्रेटर देन 2। सो हम उस फॉर्म में इंटीग्रल को लिखेंगे। सो पहला इंटरवल फ्रॉम 0 टू 2 e रेस टू माइनस एस टी एज इट इज, और यहाँ पे 0 टू 2 के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू है t प्लस 1, सो t प्लस 1 हमने ली डी टी प्लस सेकंड इंटरवल है फॉर t इज ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स t goes from 2 to infinity, that is 2 to infinity e raised to minus st, t की वैल्यू f of t की वैल्यू 3 इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t।
अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे फॉर फर्स्ट इंटीग्रल तो यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिखेंगे, एक अलजेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है। सो लिएट रूल के हिसाब से पहला अलजेब्रिक कंसीडर करते हैं और सेकंड एक्सपोनेंशियल कंसीडर करेंगे हम। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, e रेज़ टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, माइनस ऑफ उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब t प्लस वन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t दैट इज अ 1, सो माइनस 1। उसके बाद क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ नेक्स्ट, मतलब ये जो पहली टर्म यहाँ पे आई है उसका नेक्स्ट इंटीग्रेशन। तो इसका नेक्स्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज e रेज़ टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e रेज़ टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, and that minus s, so it become a minus s into minus s, that is a s square। आपको पता होगा, आपने लिबनिस रूल देखा होगा M1 में पहले यूनिट में। सो यहाँ पे लिबनिस रूल का ही रिजल्ट यूज किया। लिबनिस रूल कब यूज करते हैं हम, अगर इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है और उसमें से एक फंक्शन अगर अलजेब्रिक है तो वहां पे हम लिबनिस रूल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन थी, t प्लस वन अलजेब्रिक था और एक्सपोनेंशियल था, तो यहाँ पे लिबनिस रूल हमने लगा लिया है। So first function as it is integration of second minus derivative of first into integration of next। So यहाँ पे derivative of that t plus वन as a 1 और next का integration। अब आगे हमें हमारी स्टेप नहीं आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पे टर्म 1 है और हमें पता है कि नेक्स्ट टर्म क्या आएंगी, अल्टरनेट साइन रहती है, माइनस के बाद यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ नेक्स्ट। अब डेरिवेटिव ऑफ नेक्स्ट मतलब इस टर्म का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 0 होने के बाद 0 इंटू समथिंग अगेन इट बिकम अ 0। तो यहाँ पे ये स्टेप स्टॉप हो जाती है। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दैट सेकंड, सो दैट इज e रेज़ टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस एंड दैट माइनस एस विल बिकम अ s स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट इंटीग्रेशन पे आते हैं, प्लस अब यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो 3 को हमने बाहर ले लिया। उसके बाद e रेज़ टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन दैट इज e रेज़ टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, उसके लिमिट्स है फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी और यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के लिमिट्स है फ्रॉम 0 टू 2। सो 1 बाय 1 यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे। सो पहले 2 अगर यहाँ पे पुट किया हमने तो t के रिप्लेसमेंट हो जाएंगे 2 से, सो 2 प्लस 1 इज 3, तो ये आ गया हमारा 3। यहाँ पे 2 रिप्लेस हो जाए, यहाँ पे भी t रिप्लेस हो जाएगा 2 से, सो e रेज़ टू माइनस 2s अपॉन माइनस s, माइनस ऑफ यहाँ पे भी e रेज़ टू माइनस 2s अपॉन s स्क्वायर। तो ये हो गया अपर लिमिट, यहाँ पे हमने पुट किया इस होल टर्म में, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब माइनस लोअर लिमिट अगर पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली 1 रहेगा। यहाँ पे अगर आप 0 पुट करेंगे तो e रेज़ टू 0 1 हो जाएगा, e रेज़ टू 0 1, सो यहाँ पे है माइनस यस, सो 1 अपॉन माइनस एस, सो इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन यस। उसके बाद यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बट यहाँ पे एस स्क्वायर है, सो माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर। सो ये आ गए लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब सेकंड टर्म की तरफ प्लस 3, यहाँ पे माइनस एस कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लिया, तो 3 बाय माइनस एस। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट इंफिनिटी डाला यहाँ पे, तो हमें पता है कि ये e रेज़ टू माइनस एस टी है, सो दैट इज 1 अपॉन e रेज़ टू एस टी। अब जब आप इसमें इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय इंफिनिटी, और 1 बाय इंफिनिटी रहता है 0, सो अपर लिमिट पुट करने के बाद इसकी वैल्यू 0 आएंगी, माइनस जब लोअर लिमिट 2 डालेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा e रेज़ टू माइनस 2s, और ये बाहर की टर्म कांस्टेंट एज इट इज। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया अपना माइनस 3 e रेज़ टू माइनस 2s अपॉन s, माइनस e रेज़ टू माइनस 2s अपॉन s स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, then again a minus minus plus, and that last term again minus minus plus 3 e raised to minus 2s upon s। अब ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारी सेम है, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को कैंसिल कर दिया। सो इतनी टर्म यहाँ पे बच गई है। अब तो ये 1 बाय एस हमने एज इट इज लिखा, और दोनों टर्म से हमने 1 अपॉन एस स्क्वायर कॉमन ले लिया। 1 अपॉन एस स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे रहेगा माइनस e raised to minus 2s। So in this way we get the Laplace transform of that f of t. That f of t should be given in a 2 subintervals. So hope you understand that problem. अब ऐसा ही एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो f of t आपका डिवाइड हुआ है वो 3 इंटरवल में डिवाइड है। प्रॉब्लम इजी है बहुत ही, क्योंकि इंटरवल भी डिवाइड हुआ है f of t 3 इंटरवल में। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ तो पहले इंटरवल में इसकी वैल्यू 0 है। अब 0 होने की वजह से अगर आप इंटीग्रेशन में वैल्यू 0 पुट करेंगे तो
तो वो जीरो ही आने वाला है इंटीग्रेशन। और लास्ट इंटीग्रेशन में भी अगर यहाँ पे इस सब इंटरवल की वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी जीरो आएगा, सिंपली यहाँ पे उसकी वैल्यू नॉन जीरो आएंगी क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो देखो कैसे करते हैं हम, हमें डेफिनेशन का यूज करके करना है। तो सबसे पहले हमने ऐसे लिख लिया, दैट इज एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी dt। अब 0 टू इंफिनिटी हमारा 3 इंटरवल में डिवाइड है, एक 0 टू 1, एक 1 टू 2 और एक 2 टू इंफिनिटी। सो हमने यहाँ पे लिख लिया एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू फॉर 0 टू 1, अब 0 टू 1 ई रेज़ टू माइनस एस टी, 0 टू 1 के लिए वैल्यू एफ ऑफ टी की 0 dt प्लस सेकंड के लिए फॉर 1 टू 2, 1 टू 2 ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी की वैल्यू 2 dt प्लस फॉर 2 टू इंफिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी पर एफ ऑफ टी की वैल्यू 0, सो 0 इंटू dt। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये इंटीग्रेशन 0 है और ये भी इंटीग्रेशन 0 है। सो सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएंगी। अब यहाँ पे तो 2 कांस्टेंट है, तो 2 कांस्टेंट हमने ले लिया। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, यहाँ पे रहेगा सिंपली ई रेज़ टू माइनस एस टी dt। अब ई रेज़ टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होगा, जस्ट ई रेज़ टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। लिमिट्स क्या है 1 टू 2, सो 1 बाय 1 हम लिमिट पुट करेंगे। अब लिमिट पुट करने के पहले हम यहाँ से ये कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेते हैं, 2 तो है, माइनस एस को भी बाहर ले लिया। अब जब अपर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे टी की जगह तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू माइनस 2s माइनस, अब जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू माइनस s। सो इस तरह से हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिए, ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। सो 2/s हमने एज इट इज लिखा। अब ये माइनस साइन अप्लाई करने के बाद ये सेकंड टर्म प्लस हो गई, तो इसको पहले लिख लेते हैं और फर्स्ट टर्म माइनस है, इसको बाद में लिख लिया। सो ई रेज़ टू माइनस एस माइनस ई रेज़ टू माइनस 2s इंटू 2/s। तो ये हो गया इस एल ऑफ एफ ऑफ टी का रिजल्ट, दैट इज अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट एफ ऑफ टी। और अब ये तो बहुत ही इजी था। यहाँ पे आप ऐसा समझो कि यही प्रॉब्लम है, सिंपली आपको यहाँ पे 2 की जगह टी को रिप्लेस करना है और ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। क्या चेंजेस किया मैंने इस प्रॉब्लम में, सिंपली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 2 था तो 2 की जगह हमने टी कर दिया। सो दैट इज फॉर योर होमवर्क। और एक प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, सो आई विल राइट डाउन ऑन दैट। For homework, I have given a 2 problem which is based on that previous problems. So first is if f of t equals to t for the interval 0 to 4 and second 5 for t is greater than 4. So you have to find the Laplace transform f of t obviously by using a definition of Laplace transform. तो आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, you have to tally that answer। जैसे अब हमने previous problems के उसी पे बेस है। एक ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे है, इसके पहले हमने जस्ट देखा है कि टी की अगर जगह अगर 2 था तो कैसे किया, तो ये आपको करना है। इंटरवल भी यहाँ पे दिए हैं और इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया। सो यू हैव टू सॉल्व दैट बोथ प्रॉब्लम। यहाँ पे हम हमारा लेक्चर कंप्लीट करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दैट। यू हैव टू राइट ऑल दी पार्ट्स इन अ नोटबुक। सो थैंक यू।